डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास 10th. So here again what we have to do, see which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो हमें सबसे पहले consistent और inconsistent चेक करके if consistent obtain the solution graphically, तो उसके solutions भी find out करने हैं. तो consistent और inconsistent we have already studied कि consistent दो cases में होता है, जब lines या तो intersecting होती है या फिर coinciding होती है, और parallel lines के केस में हमारे पास inconsistent का केस आता है. तो देखते हैं, let's see the first part. We have x plus y is equals to 5 and second one is 2x plus 2y is equals to 10. So if you will find out a1 upon a2 here, a1 upon a2 what we get 1 by 2. The coefficient of x we can see 1 and this is 2. If we write b1 upon b2 here, again it is 1 by 2 coefficient of y, and if we write c1 upon c2, that is 5 upon 10, which gives again 1 by 2. So it means the condition is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, और तीनों इक्वल अगर रेशियो होते हैं तो हमारे पास जो लाइंस होती है वो कैसी होती हैं, हमारे पास ये लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं और जिसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं. तो अब हमें इसके सॉल्यूशंस को ग्राफ से प्लॉट भी करना पड़ेगा. तो लेट्स सी हाउ वी प्लॉट द ग्राफ x plus y is equals to 5. अभी तक देखिए अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बट हम एक बहुत इजी तरीका और डायरेक्ट मेथड देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें x को 0 पुट कर देते हैं. If you put x equals to 0, what we get y? 0 plus y is equals to 5, and 0 plus y is y, so what we get? Y is equals to 5. So first point which we have to mark is here 0,5. Got it? In the same way, if we put y is equals to now, if we put 0, what we get? X plus 0 is equals to 5. So we get x equals to 5, and y what we have substituted? 0. So we get the point 5, 0. So 0,5 is the point, first one lying on the y-axis. We know 1, 2, 3, 4, 5. This point is 0,5, and 5, 0 is on the x-axis. This point 5, 0 here. So if we draw these two, join these 2 points, we get this type of a line here and for the first equation. तो इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन को भी ड्रॉ करना है. तो लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन व्हाट वी हैव 2x plus 2y is equals to 10. तो अगर हम इसमें x को 0 पुट करते हैं, सी अगेन, तो 0 plus 2y is equals to 10, what we get? y is equals to 5 again. So point is 0,5. अब एक बार y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 2x plus what we get? 2 into 0, this is 0 equals to 10. We get 2x equals to 10, which gives us x equals to 5. The point, पहले x कोऑर्डिनेट आप राइट करोगे, that is 5, और फिर y कोऑर्डिनेट जो कि हमने ऑलरेडी 0 पुट किया था. So 0,5 and 5,0, again the same point we are getting, and we will get again the same line by using the second equation. तो आप देख रहे हो जो सेकेंड लाइन है वो भी इन्हीं दोनों सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है. इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस होंगी वो आपस में कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी. ठीक है, जिसके हमारे पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं. x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16. So what is a1 upon a2 here? If we take the coefficient of x, a1 upon a2, we can write 1 by 3. b1 upon b2, see again what we have, b1 upon b2, coefficient of y, minus 1 here and minus 3 here. So minus minus cancel, again it is 1 by 3. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but we have to check whether it is equals to c1 upon c2 or not. So we will find out c1 upon c2, that is 8 upon 16, which gives us 1 by 2. तो हमारे पास कंडीशन है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but not equals to c1 upon c2. This is the condition for the lines to be parallel, or we have no solution. It means the equations are inconsistent. तो inconsistent है, इसके लिए हमें कंडीशन देखनी है और इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है. तो let us see x minus y is equals to 8. Put x equals to 0, what we get? Y is equals to minus y is equals to 8 we get, and y equals to minus 8. तो फर्स्ट पॉइंट is 0, minus 8. तो हमारे पास डायरेक्ट एक तरीका है कि हम इसमें क्या करें कि इसमें डायरेक्ट एक बार x को 0 रख देते हैं और एक बार y को 0 पुट करते हैं. अब जब y को 0 रखते हैं तो x minus 0 is equals to 8. इस इक्वेशन में हम 1 में y को 0 पुट कर रहे हैं तो x we get 8.
तो अब आपको 0,-8 जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. So this will be 0,-8. The first point is 0,-8 on the y-axis और x equals to 8 है तो y equals to 0, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आया था 8,0 which is on the x-axis on the positive side 8,0 is this one. तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो सी इस तरीके की कोई लाइन हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हो जाती है. लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन नाउ. तो सेकंड इक्वेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 3x minus 3y is equals to 16. Put x equals to 0. तो x को हम 0 रखेंगे, so this part will be 0 minus 3y is equals to 16 or we can write y is equals to minus 16 upon 3. So first point is 0, minus 16 by 3 we are taking. अब एक बार y को 0 रखिए तो y को यहाँ 0 रखने से 3x minus 0 equals to 16 मिलेगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16/3. तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट होगा वो 16/3, 0 आएगा. तो अब देखते हैं ये दोनों पॉइंट्स को मार्क करते हैं और देखते हैं किस तरीके की लाइन मिलनी चाहिए, जो कि हम पहले ही अभी हम सॉल्यूशन में देख चुके हैं कि किस तरीके की लाइन्स हमें मिलती हैं. तो हमने क्या कौन सी लाइन्स बोला था कि दीज लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. तो हमारे पास ये लाइन्स पैरेलल आनी चाहिए. देखते हैं आती है कि नहीं आती है. तो फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट 16/3. 16/3 इक्वल टू 5.3 समथिंग. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 5 is 15, फिर बचा 1 3 3 is 9, तो 5.3 समथिंग. इट विल बी ऑन द x एक्सिस दिस साइड. दिस इज 16/3, 0. देखिए 5 और 6 के बीच में 5.3 जो होगा हमारे पास यहाँ पर कहीं लाई करेगा. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की 0, -5.3. तो 1 2 3 4 5 5.3 विल बी समवेयर लाइक दिस. तो अगर हम इसको ज्वाइन और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमें मिलेगी वी विल गेट अ पैरेलल टू दिस गिवन लाइन. जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसके एक पैरेलल लाइन हमें इस तरीके से मिल जाती है. तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन आई थी उसी तरीके की लाइन्स हमने यहाँ पर प्लॉट की है. दीज टू आर द पैरेलल लाइन्स. that is 2x plus y minus 6 equals to 0, and we have second one is 4x minus 2y minus 4 is equals to 0. So let us see now for these two equations which type of graph we get. So if we find a1 upon a2 here, what we have 2/4. x के कोफिशिएंट्स फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, इस पे 4 है, कट कर दो तो 1/2 हम राइट कर सकते हैं. तो राइट सी v1/v2. तो v1/v2 हमारे पास कितना है 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड -2 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. दे आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पर c1/c2 अगर आप नहीं भी चेक करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रही है. तो कंडीशन इज a1/a2 is not equals to v1/v2. So a1/, what is the second equation? by mistake कब हो गई है तो 4x minus 2y and -4 equals to 0. ओके ठीक है. तो हमारे पास कंडीशन कौन सी आई थी a1/a2 is not equals to v1/v2 वाली कंडीशन आई थी, जैसे कि हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं. इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलना ही चाहिए. तो लेट्स सी ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस को. 2x plus y is equals to 6. Put x equal to 0. What we get y? Yes, 6 we get. तो फर्स्ट पॉइंट है 0,6. 0,6 अगर आप मार्क करोगे तो हमारे पास यहाँ कहीं होगा ऑन द y एक्सिस. दिस पॉइंट इज 0,6. अब वोट कर लेते हैं इसमें y को 0, तो 2x plus 0 is equals to 6 we get, और it is x equals to 3. तो second point is 3,0. 3,0 is on the x axis, and if we will join these two points we get this type of line here. So let us discuss the second line. Second line को draw करते हैं. We have 4x minus 2y is equals to 4. Put x equals to 0 in this. What we had minus 2y is equals to 4 or y is equals to -2. The first point is 0, -2. 0, -2 एक पॉइंट हमारे पास आ गया. अब एक और y को 0 रख लेते हैं. तो 4y माइनस यहाँ पर 0 रखिए. दिस विल बी 0 equals to 4. We get 4x equals to 4, x equals to 1. The second point is 1,0. तो मार्क करते हैं दोनों पॉइंट्स को 0, -2. We know it is on the y-axis downwards. 0, -2 this one, and 1,0 is here. So if we join these two points, we will get this type of line
which meets here. तो यहाँ पर ये इसको मीट कर रही है। अब हमें इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यूज हो रही है, बट जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्टली यू विल गेट दिस एट 2। तो ये यहाँ पर आपको 2 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इसका पॉइंट जो है 2 पे मीट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास 2,2। तो दिस ओनली यू विल ओनली गेट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अगर हम, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको विदाउट एनी ग्राफ पेपर और विदाउट एनी स्केल में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ये वैल्यूज होती हैं। तो आई नो दैट दिस इट्स आंसर इज 2,2, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। तो आप इसको थोड़ा सा जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो यू विल एग्जैक्टली गेट दिस पॉइंट 2,2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है 2x minus 2y minus 2 is equals to 0. This is 2x minus 2y minus 2 equals to 0. And second one is 4x minus 4y minus 5 is equals to 0. So let us see the solution of these two equations. तो आइए देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारे पास सबसे पहले वेरीफाई है। a1 upon a2 is 2/4 which gives 1/2. See the ratio of these two. Again b1 upon b2 is the ratio of coefficient of y which is -2 upon -4। ये दोनों के को रेशियोज हैं which is gives again 1/2। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 2 2 जा 4। बट c1 upon c2 इक्वल राइट, क्योंकि a1 upon a2 b1 upon b2 का इक्वल है, तो हमें तीसरी कंडीशन में आना है। अगर ये नहीं आते तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही हो जाती। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। अब या तो पैरेलल होंगी या कोइंसाइडिंग होंगी, तो इट विल डिपेंड्स ऑन c1 upon c2। c1 upon c2 है हमारे पास -2 by -5 which is 2 upon 5। तो कंडीशन इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। तो ये जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन की कंडीशंस हैं। तो हमें जो इसका ग्राफ मिलना चाहिए, कैसा ग्राफ मिलेगा, पैरेलल लाइन से ग्राफ मिलेगा। लेट्स सी द ग्राफ ऑफ दीस। अगेन आपको फिर से मैं बता दूं कि एक बार कि आपको ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, तभी आपको एग्जैक्टली लाइंस मिलेंगी। जैसा कि हमें लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा था, बट मैं इनको आंसर मालूम था तो हमने इसका आंसर को डायरेक्टली उससे मैच करा के लिख दिया। लेकिन आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स इसके मिलेंगे। तो लेट अस सी दिस 2x minus 2y is equals to 2 भी है द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें x को 0 रख देते हैं, तो -2y is equals to 2, we get y is equals to -1। फर्स्ट पॉइंट इज 0, -1। तो 0, -1 मार्क कर देते हैं। तो 0, -1 वी आर डाउनवर्ड्स ऑन द y एक्सिस। अब इसमें एक बार पुट करते हैं हम, x को हमने 0 पुट कर लिया है, तो y को 0 पुट कर लेते हैं। 2x minus 0 equals to 2, we get x equals to 1. So second point is 1, 0. 1, 0 will be this point. तो अब आप इस लाइन को ड्रॉ करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली को इस तरीके से ड्रॉ करनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो लेट अस सी द सेकंड वन, 4x minus 4y is equals to 5. Put x equals to 0. x को 0 रखेंगे तो ये आ गया 0, minus 4y is equals to 5. So y we get minus 5 upon 4. तो फर्स्ट पॉइंट है 0, -5/4। तो -5/4 को अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इट विल बी 1 point something। तो 0, 1 point something, it will be between 1 and 2। तो between 1 it will be 0, 4 1 जा 4 and 1 is left, तो 4 2 जा it will be approximate 1.2। तो यहाँ पर कहीं ले लेते हैं 0, -5/4 को। सी दिस पॉइंट केयरफुली। थोड़ी बहुत माइन्यूट से डिस्टेंसेस में चेंजेस कई बार हो सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स को बहुत ध्यान से इसमें ग्राफ पेपर में लगाना है। तो लेट अस सी द सेकंड लाइन। सॉरी, सेकंड लाइन के लिए हमारे पास पुट करना था। अब हमें हम इसमें क्या पुट कर चुके थे, x को 0 पुट कर चुके हैं, तो इसमें y को 0 रखेंगे। 4x minus 0 equals to 5 we get, which gives x equals to 5/4। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आएगा 5/4, 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 5/4, इट विल बी समवेयर लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि इसका जो पार्ट है वो इस तरीके से हमारे पास दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो रही है।
which is again parallel to the first line. So these are all the 4 parts. With the help of the very carefully, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो हमें यहाँ पर इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन. एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास है. इसकी लेंथ को हम x और विड्थ को सपोज y कंसीडर कर लेते हैं. लेट लेंथ ऑफ द गार्डन वी कैन राइट हियर सपोज x meters and width of this garden is equals to y meters. So what is the first condition? See, half the perimeter. We know the perimeter of a rectangle. If length is x, width is y, what is its perimeter? We have 2x plus y, and we have to do its half. So हमने 1/2 of 2x plus y. Half the perimeter is equals to 36. How much it is? It is given equals to 36. The first condition is the half perimeter. The perimeter of rectangle is 2x plus y. So its half perimeter, half of 2x plus y is equals to 36. This 2 and this 2 will be cancelled out. We can directly write x plus y is equals to 36, which is equation number 1. Now apply the second condition here. What is the second condition which we can write from here? That is whose length is 4 more than its width. So which one is greater? Again I have explained you previously also. हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, लेंथ में से और विड्थ में से. तो whose length is 4 more. तो ऑब्वियसली यहाँ पूरी लैंग्वेज में समझ में आता है कि लेंथ बड़ी है, ग्रेटर है by 4. तो हमारे पास जो लेंथ है वो x है. तो x is equals to, we have to add 4 in this y. So we can write x is equals to y plus 4 or x minus y is equals to 4, which is equation number 2. To solve these two equations, we have x plus y is equals to 36 and x minus y is equals to 4. We can add these two equations. So if we add these two, plus y and minus y will be cancelled out. We have this x plus x, 2x is equals to 36 plus 4, that is equals to 40. So x we get 40 upon 2 equals to 20. Now put this value of x in any of the equation. तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको पुट कर लेते हैं तो लेट्स सी. वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 इज द फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हम x को क्या पुट कर रहे हैं 20. तो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. वी गेट y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20 और y इज इक्वल्स टू 60. सो इट मीन्स द लेंथ इज 20 एंड विड्थ ऑफ दिस फील्ड rectangular field is. So in the sixth question given a linear equation. हमें एक linear equation यहाँ पर दे रखी है. The linear equation is 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. हमें इसमें दो और linear equations, हमें और linear equations write करनी है. And the condition is that first one, the line should be intersecting. तो intersecting line की conditions हमारे पास होनी चाहिए. हमें पता है कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. So we have to write another equation which shows that the two lines must be intersect each other always. तो हमारे पास जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर हम a1 कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 2 है, b1 हमारे पास 3 और c1 की वैल्यू 8 है. तो we have to take such values of a2 and b2 so that they must not be equal. जैसे अगर हम कोई इक्वेशन राइट करते हैं, सपोज हम राइट कर देते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a2 हमने कितना लिया है, वी हैव टेकन 1 एंड b2 वी हैव टेकन अगेन 1. तो a1 अपॉन a2 इज 2 upon 1, b1 अपॉन b2 इज 3 upon 1, विच आर नॉट इक्वल. तो ऐसी कोई भी इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन हो सकती है जिसमें ये कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 सेटिस्फाइड हो जाए. तो हम यहाँ पर इसके ऐसे कोई भी कोएफिशिएंट्स लेके सेकंड इक्वेशन को राइट कर सकते हैं. तो अगर हमें राइट करनी है लाइंस मस्ट बी पैरेलल, इसी के पैरेलल अगर लाइन होनी चाहिए तो पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एंड बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो इसका मतलब हमारे पास जो ये रेशियो है a1
का और a2 का b1 और b2 का ये सेम होना चाहिए। तो हम अगर a2 को ले लेते हैं सपोज 4 और b2 को ले लेते हैं सपोज 6, हमने इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, और c2 हम कोई भी वैल्यू अनदर वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? अब वी कैन राइट 4x प्लस 6y एंड -7 और +7 इज इक्वल्स टू 0। या -7 ही लिख लेते हैं c की वैल्यू, अगर हमने 7 लिया है तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन को फुलफिल करती है, क्योंकि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास जो कंडीशन है थर्ड वन, उसके लिए एक लाइन राइट करें जिसके लिए कॉन्साइडिंग लाइंस हमें राइट करनी है। तो कॉन्साइडिंग के लिए तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको डबल करके a2 को सपोज 4 ले लिया था, यहाँ पे b2 को डबल करके इसको 6 ले लिया था, तो यहाँ पर हम c2 को डबल करके इसको क्या ले लेंगे? c2 को हम डबल करके राइट कर सकते हैं a2 = 16। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी तो 4x plus 6y minus 16 is equals to 0 if we will take. So this equation will be coinciding with this equation because the condition a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 is satisfied. See students, question number 7 now. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. We have to plot the graph of these two equations, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें इन दोनों लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करना है और उसके बाद इन दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस और थर्ड लाइन विल बी एक्स एक्सिस, तो इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड भी करना है और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x minus y plus 1 is equals to 0. If you put x equals to 0 in this, what we get? Minus y plus 1 is equals to 0, or we get y is equals to 1. So the first point which we have to mark is 0, 1. So another point, if we take y equals to 0 in x minus y plus 1 equals to 0, y के प्लेस में अगर आप 0 पुट करते हो तो we get x plus 1 is equals to 0, which we gives x equals to minus 1. The second point is minus 1 comma 0. So we have to plot these 2 points, 1 comma 0, 1 comma 0 will be this, and minus 1 comma 0. Minus 1 comma 0. First point is minus 1 comma 0 is this one, and second point is 0 comma 1. 0 comma 1 is this. So we have to draw this line by joining these 2 points. This is 0 comma 1 and this is minus 1 comma 0. So to draw another line, the second line is here we have 3x plus 2y is equals to 12. We can write, we have shifted this 12, put x equal to 0 plus 2y is equals to 12. So y is equals to what we get? 6. Point is 0 comma 6. So if we have 3x plus 2 into, अब हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x equals to 12 which gives x equals to 4. तो point is 4 comma 0. So 4 comma 0, so 4 comma 0, 1 2 3 4 comma 0 will be here on the x axis and 0 comma 6 on the y axis. 1 2 3 4 5 6. So this will be 0 comma 6 point. अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड लाइन विल बी दिस वन। तो हमारे पास दो लाइंस बन गई है और एक हमारा एक्स एक्सिस था जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम नेम दे देते हैं ए बी एंड सी और इसको हमें शेड कर देना है। तो दिस ट्रायंगल इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट देखिए, बी के कोऑर्डिनेट अगर हम राइट करते हैं तो दैट इज -1 comma 0 ऑलरेडी वी हैव। सी के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, दैट इज 4 comma 0। अब ए के कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट करने। तो ए इज द पॉइंट व्हिच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन दीस टू लाइंस। तो आप क्या करते हो, जब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंपलीफाई कर लीजिए। व्हाटएवर बी द पॉइंट्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट,
दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2x minus 2y plus 2 is equals to 0. So we are trying to simplify these two equations. So for that we have to make the coefficients of y equal. इस y के coefficients को हम equal करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो second equation is 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. If you will add both of them, plus 2y minus 2y cancel out, we get 3x plus 2x 5x, and 2 minus 12 we get minus 10 is equals to 0. So 5x equals to 10, we get x equals to 2. If you put x equals to 2, we can find the value of y. So x की value 2 रख देते हैं equation number 1 में, which is x minus y plus 1 equals to 0. If you put x equals to 2 minus y plus 1 equals to 0, we have 3 minus y is equals to 0, we get y is equals to 3. So the coordinate of this point A is 2, 3. तो हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस A, B, C के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट